ہوتے ہیں. ساتھ برکت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب ایسا ہے کہ اس وقت ہم آپ کی لائف کو روحانی مسائل کا حل ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کر رہے ہیں. صاحبزادہ سعد اختر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ایسے ویئرز جن کی اولاد کا مسئلہ ہے یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہے یا پھر بیرون ملک جانے میں کوئی رکاوٹ ہے یا اس قسم کے تمام مسائل کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. اور جناب کال کیجئے اور استفادہ حاصل کیجئے. اور جن لوگوں کی کال نہیں ملتی وہ ٹیلی ویژن پر ہمارے نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے ہیں, نوٹ کر لیجئے. ادارے میں کال کیجئے اور رہنمائی حاصل کیجئے. ایکچولی پروگرامز کر رہی ہوتی ہوں میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شاہ جی ایک ہوتے ہیں اور آپ بھی ہیں, نام بہت زیادہ ہیں. اینی وے جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انوری بول رہی ہوں یو کے سے. کون بات کر رہی ہیں؟ انوری. انوری بات کر رہی ہیں یو کے سے. جی کیا پوچھیں گی؟ جی میرے ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا بہت بڑا آتی ہے اور بڑا پرابلم ہے, تو اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کے لیے کیا تھا. اچھا جی نام بتائیے, ہسبینڈ کا نام بتائیے. محمد ایوب. محمد ایوب. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ اصغر علی. اصغر علی. ایج کیا ہے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 50. راؤنڈ اباؤٹ 60. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ سیم. سیم. اوکے جی, بہت شکریہ جناب کال کرنے کا. ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. انوری یو کے سے ہمارے ساتھ تھی. انوری کی جواب ہے ان کا جواب بعد میں دیں گے. پہلے ہم عمر صاحب کی کال آئی جی تھی بالکل بریک کے دوران, تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا تھا, اب اس کو مسئلے کو ذکر کرنا ضروری تو نہیں, تو ان کے لیے ایک تسبیح جو ہے وہ میں نے نکال کے رکھی ہے. عمر صاحب آپ کیجئے گا انشاءاللہ, جتنے آپ محنتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح کریں, آپ کو بڑی کامیابی ملے گی. وہ تسبیح ہے یا خبیرو یا اللہ, یا خبیرو یا اللہ 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. باقی میری بہن انوری نے جو کال کی کہ ان کے ایوب صاحب کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے, انشاءاللہ تعالی اب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے ایک تسبیح بڑی توجہ سے سنیے گا, وہ کرنی ہے ریگولر بیسس پہ. ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا کبیرو یا ودود, ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا کبیرو یا ودود. انشاءاللہ تعالی اب بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. جی شاہ جی. جناب ایسا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ مرکز, جس میں آپ کو استخارہ کر کے دیا جاتا ہے. آپ کی ڈیفرنٹ پرابلم جو ہے وہ سنی جانی ہے. اور ساتھ ایک لائیو کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رب نواز خان بات کر رہا ہوں, لندن سے بات کر رہا ہوں. جی رب نواز, کیا پوچھیں گے؟ پوچھ نہیں کہ کچھ عرصے سے میرے ساتھ بھی کافی ٹربل پیش آ رہی ہے. میں یو کے میں پچھلے کچھ 4 سالوں سے ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے MBA بھی کیا ہے, میری فیملی بھی ادھر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی کچھ اسٹے کا بھی مسئلہ آ رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں سے موو کروں سویڈن یا کہیں اور. اوکے اوکے ٹھیک ہے. بیٹر ہے نہیں ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. والد صاحب کا نام بتائیے پلیز رب نواز. محمد صدیق. محمد صدیق. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 36 آن اباؤٹ 36 آپ کی ایج ہے. چلیں جی, بہت شکریہ رب نواز کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے, ہم آپ کو ابھی آن ایئر آنسر کریں گے. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. اور جناب اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے. جی جی ہاں, رب نواز صاحب, آپ کے لیے اتفاق عموماً لوگوں کو ایک تسبیح بتائی جاتی ہے, لیکن حالات ایسے جو بنے استخارہ کی مدد سے دیکھیں, 2 تسبیحات آپ نے کرنی ہے. ایک تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ, یہ نہیں پڑھنا ہے یا ستارو یا غفار, اول آخر درود پاک کے ساتھ, یا ستارو یا غفار. اور ایک تسبیح کرنی ہے یا رافع یا اللہ, اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی. یعنی دونوں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے 100 مرتبہ پڑھنے, 2 تسبیحات 100 مرتبہ, اور اول آخر درود پاک, اور آخر میں آمین کہنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہر کام میں آپ کو انشاءاللہ آسانی, سہولت اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی.
जी जनाब, इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़, जिसमें साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे रूहानी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, इमिग्रेशन का मसला होना, आफात व बलियात का घेरा होना, इसके अलावा अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बच्चों की शादियों का मसला है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम हमारा जो है उसका टाइमिंग बिल्कुल एहतताम की तरफ अब चल रहे हैं, तो जनाब कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। जिन लोगों की कॉल नहीं मिल रही, माजरत ख्वाह हमारे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। शाहजी के दोनों नंबर जो हैं इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए और उसके बाद कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए। मेरा ख्याल है कि कॉलर हैं हमारे साथ जनाब। जी, कॉलर इस वक्त हमारे साथ नहीं है और हम सूरत है कॉल, ठीक है जनाब, कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। एक मिनट, बंद कर दिया मैंने। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अच्छा, वो शाह साहब से बात कराए हैं। जी शाह जी, सुन रहे हैं आपकी बात, नाम बड़े बताइए। परेशानियां हैं। एक तो वाइफ का वीजे का मसला है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। वो परमानेंट केस दिया था, वो 3-4 दफा दिया है। 12-14 साल हो गए हैं शादी की हुए। दूसरी शादी, मेरी उम्र 75 है। 75 है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद सदीक वल्द शाह वली खान। मोहम्मद अच्छा। सदीक वल्द शाह वली खान। जी, अब बताइए क्या मसला है? अच्छा, एक तो वो उसका वीजा नहीं हो रहा है अभी, परमानेंट वीजा तो नहीं मिला अभी। विजिटर वीजा का अप्लाई किया, भी कुछ बताएं, दुआ करें कि वो उसका हो जाए। दूसरा, एक आदमी मेरा 55,000 पाउंड यहाँ से लेकर भाग गया, ओहो। चला गया। तो नाम कुछ पता है उसका आपको? हाँ, नाम पता है मुझे। जी बताइए। उसका नाम है ये भूल गया हूँ फिर उसका। चलें, कोई बात नहीं। आप अच्छा, अपनी मिसेस का नाम बताइए। मिसेस का नाम बता दीजिए। मेरी वाइफ का जी जी, वाइफ का नाम बता दीजिए। सफीनत बेगम है। सफीनत बेगम। और उनकी एज क्या है? उसकी एज है यही कोई होगी 40-45। 40-45 उनकी एज होगी जनाब। बहुत शुक्रिया 3 कॉल। बच्चे हैं उसके। और- 3 अच्छा, बच्चे। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने वो का। जी पाकिस्तान में है ना? जी, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में है और इनको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। अभी विजिट वीज़ा उनका लग गया है, लेकिन परमानेंट उनका वीज़ा लगवाना चाहते हैं और वो नहीं लग पा रहा। उसके लिए वजीफा बता दीजिए। और बाकी जनाब, आपने बताया कि एक कोई शख्स आपके पैसे लेकर इतने ज़्यादा जो है वो यहाँ से भाग गया है, तो उसके लिए आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। उसका नाम, उनके वालिद साहब का नाम और तकरीबन उनकी एज जो है वो आपके पास होनी चाहिए। या प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिए। हमारे इदारे में रूहानी स्कॉलर मौजूद है, इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो जरूर हेल्प करेंगे। जी अच्छा, ये मोहम्मद सदीक साहब वल्द शाह वली का, इन्होंने अपनी मिसेस की यहाँ इंग्लैंड आमद के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें रुकावट है। तो मोहम्मद सदीक साहब, आपने एक तस्बीह करनी है, या अजीज़ो या अल्लाह, या अजीज़ो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दूध पाक के साथ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी और वो उम्मीद है कि जल्द आपके पास होंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और जी जनाब। बाकी आपने जो पैसे 55,000 पाउंड ले गया, चूँकि बायोडाटा हमारे पास नहीं है, आपने प्रोवाइड नहीं कर सके, तो बेहतर यह है कि आप जो स्टिप्स पे नंबर चल रहे हैं वहाँ पे रब्ता कर लीजिएगा। जी जनाब, बिल्कुल। और एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं अल्लाह बख्श बात कर रहा हूँ, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। अल्लाह बख्श, तो लंदन डिस्चार्ज से बात करनी है। मैंने पहले भी कॉल मिलाई थी तो मेरी कॉल जो है वो डिस्कार्ड कर दी गई। जी, वो सुन रहे हैं। आप बताइए, अपने अपने वालिद साहब का नाम बताइए। अल्लाह बख्श। जी, मेरे वालिद साहब का नाम है सुल्तान अहमद। सुल्तान। और आपकी एज क्या है? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। मेरी एज इस वक्त 32 ईयर्स है जी। 32। जी, क्या पूछेंगे? असल में मेरे 7 भाई और 3 बहनें हैं जी। और मेरी जो फैमिली है उस फैमिली के ऊपर बंदिशें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। पता नहीं कि बंदिशें क्यों हैं। कोई शादी करे वो शादी कामयाब नहीं होती, कारोबार करे वो कामयाब नहीं होता, अच्छा, फैमिली माली का। परेशान हर तरफ से। वो जैसे शादी ने भी मैं प्रोग्राम देख रहा था कि मायूसी गुनाह है जी और बिल्कुल।
اور مایوس آدمی، لیکن ہر طرف سے مایوسی، ہم مایوس نہیں ہیں کوئی بات ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت سے، مگر کوئی کام بنتا بھی نہیں. اچھا چلیے آپ یہ بتائیے اللہ بخش، آپ کی فیملی پاکستان میں رہتی ہے یا آپ کے ساتھ لندن میں ہے؟ جی میرے 2 بھائی تو یہاں پہ ہیں لندن میں، ایک ٹریننگ سولیسیٹر ہیں اور ایک جو ہے وہ سیلز کا کام کر رہے ہیں، مگر وہ بس آپ سمجھیں کہ بس وہ چل ہی رہے ہیں اللہ کے نام پہ. چلے جناب، بہت شکریہ کال کرنے کا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ وظائف پڑھیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا. جی ہاں جی، اللہ بخش صاحب، آپ نے خود بھی اور پاکستان میں جو آپ کے گھر والے ہیں ان سب سے کہیے زیادہ نہیں تو تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت فوری طور پہ اس کی تلاوت شروع کر دیں. قرآن پاک تھوڑا تھوڑا سب پڑھنا شروع کر دیں. آپ کی جو بہنیں ہیں وہ سرگوشیوں میں جیسے خواتین قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں ویسے کریں، اور آپ کے بھائی یہ والد صاحب ہیں وہ قرأت کے ساتھ کریں اور ان کی آواز گھر میں گونجے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کچھ عرصہ یہ عمل کریں اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ رابطہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پھر مزید پہلے کچھ عرصہ یہ 15-20 دن یہ کریں، اس کے بعد میں پھر اس میں تبدیلی کروں گا تاکہ آپ کامیابیوں کی طرف چل پڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مایوسی گناہ ہے، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا، میں مایوس ہوتا ہی نہیں. میں نے گھر والوں سے کہا جس دن میں مایوس ہو گیا سمجھ لو میں گیا. میں نے تو مایوسی اپنے نزدیک کبھی آنے ہی نہیں دی. میری لغات، میری ڈکشنری میں مایوسی کا لفظ نہیں، کیونکہ میرا بھروسہ اللہ پہ ہے، میرا تقوی اللہ پہ ہے. تو آپ بھی اللہ پہ تقوی اختیار کریں اور سوچیں کہ سب کام انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. میں اپنے رب کو منواؤں گا. رب جو 70 پیار کرنے والی ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں اس کے آگے جھک جاؤں گا، اس سے مدد مانگوں گا، اس سے التجا کروں گا اور اس سے مانگ لوں گا اور اس سے منوا لوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رب آپ اس کی بات مانیں گے. فی الحال آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ خیر و برکت آئے گی. پھر 15-20 دن کے بعد دوبارہ رابطے کیجیے گا. جی ہاں. اور جناب ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال نہیں ہے. اور جناب ابھی جنہوں نے کال کی تھی بڑا لمبا چوڑا ان کا جو تھا وہ کوسچن تھا، ہم نے آپ کو وظیفہ جو ہے بتا دیا ہے. وظیفہ آپ پڑھیے اور کچھ دن کے بعد ہم سے دوبارہ رابطہ کیجیے. لیکن اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں تھیں تو اس کے لیے ہمارے نمبر جو ہیں وہ اسکرین پر ڈسپلے ہیں. آپ ادارے میں بھی کال کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں سعدیہ نے جو بات کی ہے میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں. جی بالکل. کہ اگر تو ہونا کسی ایک شخص کا مسئلہ، کئی کال رہی ہیں، کسی شخص نے کہا کہ میرا ذاتی مسئلہ ایک ہی بندے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا بایو ڈیٹا لے کے ہم فوری طور پہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ حل ہے، دس از دا سولوشن. یہ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا. لیکن جب بات تفصیل ہو، اس میں کچھ اور شخصیات یعنی ایک کے علاوہ 1+2 3 4 ہوں تو بات تھوڑی ساری لمبی ہو جاتی ہے. اور ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہیں ویری ڈسپلن، ویری کوآپریٹو ود آل دا کالرز، وہ ہمیں پیچھے سے پنچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نیکسٹ کال. تو ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کہ پھر ہم مجبوراً یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کر لیجئے. تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی آپ ہی کی بھلائی ہوتی ہے. تو اگر انڈیویجول کویشچن ہو تو ہم فوراً آنسر کر دیتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں. لیکن کچھ مزید 1+ کچھ بھی ہو جائے، 2 3 4 لوگ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ پروگرام کے بعد کرتے ہیں. تو ساری یہ جو بات کر رہی ہے اس کے پیچھے یہ لاجک ہے. ہاں جی بالکل. تو آپ اور ایک کال دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی کال لگ چکی ہے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. جی کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ٹی وی کا والیوم جو تھا وہ بند نہیں تھا. اور میں متعدد بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تو پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجئے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے اور آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ کی کال جو ہے وہ آن ایئر ہو چکی ہے، آپ کی کال پروگرام میں لگ چکی ہے. تو میں آپ کو جو ہے نا اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد پورے یقین کے ساتھ مانگے. ہاں جی بس اب کہ یا اللہ تو مالک ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو بے نیاز ہے. ہم تو تیرے آگے جواب دہ ہیں. اے رب، اے جلال شانہ، تو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. تو تمہارے کن فیکن کہنے سے ہر چیز ہو گئی. تو ہمارے مسائل اتنی بڑی شان والے کیا ہیں؟ تو ہماری بات سن لے، ہماری عرض سن لے تو وہ آپ کے یہ مسئلے حل ہوں گے.
अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर करके देखें, अपने आप को झुका के देखें, सजदे में जाके तो देखें, अपनी आजिज़ी का इजहार करके तो देखें। अल्लाह ताला पे किस तरह आपकी बात नहीं सुनता है। काल वो जो है फिर देखे वो बात नहीं करने देता है। जी, फिर कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। भाई कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? टीवी मैं का बार्सिलोना से बात कर रहा हूँ। लेकिन डब्ल्यू टीवी से मेरा नाम शुरू होता है। 15/9/1960 मेरी डेट ऑफ बर्थ। आपको अपना नाम, पूरा नाम बताना पड़ेगा और सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज। तो मैंने बता दिया ना उन्होंने। भाई इस तरीके से हम आपको आंसर नहीं कर सकते हैं कि डब्ल्यू से आपका नाम स्टार्ट होता है। हमें आपका पूरा डाटा चाहिए होता है, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम और आपकी जो एज है वो हमें चाहिए होती है और फिर हम जो है वो आपको इसका सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करते हैं। 15/9/1960 है मेरी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ठीक है जी। तो नाम उनको मैंने बता दिया, वो उन्होंने बता दिया होगा। अच्छा चलें ठीक है। वालिद साहब का नाम बता दीजिए। सरदार खान। सरदार खान। क्या पूछेंगे? ये आपने लाइफ के बारे में पूछना है यहाँ पे। लाइफ के बारे में क्या पूछेंगे? कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका? हाँ, ये सारा बिजनेस का सारा पूछना। अच्छा, बिजनेस के हवाले से। ठीक। कब वैसे कहाँ से कॉल किया हमें आपने? जी, बार्सिलोना से बताया है ना। बार्सिलोना से। चले जनाब, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। नाम जो है वो जनाब आप हिडन रखिएगा क्योंकि हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने नाम इनका बता दिया है। बाकी बायोडाटा हमारे पास मौजूद है और बिजनेस के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, बता दीजिए। जी हाँ, ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप ऑन एयर एक नया आइडिया आज आपने दिया मिस्टर डब्ल्यू कि आपने हमारे प्रोड्यूसर को अपना नाम बताया, एक नया आइडिया है, लेकिन ठीक है, मसलन अब नहीं बताना चाहते, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बता देते तो बेहतर था। एनीवे, आप एक तस्बीह उसकी रूटीन बना लें, इंशाअल्लाह ताला अब आपके लिए कामयाबियाँ होंगी। या नासिरो या अल्लाह, या नासिरो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किसी भी वक्त कॉल कर लीजिए। अल्लाह ताला हर वक्त सुनते हैं आपकी पुकार, लेकिन बेहतर है कि ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या नासिरो या अल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा और साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम संगा सिंह जी। जी, क्या नाम बताया जरा? संगा सिंह। और आपके वालिद साहब का नाम? सॉरी? वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। फादर का नाम? जी जी। मिल्खा सिंह। और आपकी एज क्या है तकरीबन? 39। जी, क्या पूछेंगे? जी, इमिग्रेशन मतलब बोला कोई पेपर नहीं मिल रहा जी, पेपर बड़ी रुकावट आ रही है जी इतने इसमें की जगह पूछना। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको भी ऑन एयर आंसर करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि आप हमारे इदारे में भी कॉल कर सकते हैं क्योंकि आपके मजहब से रिलेटेड तमाम रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद हैं जो आपकी इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग योर रिलीजन और आपकी जो हॉली बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करेंगे। जी, अभी फ़िलहाल मैं आपको फौरी तौर पे एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, उस पर आप अमल ज़रूर कीजिएगा। वो ये है कि कोई ऐसा मरीज़ जो मेडिसिन नहीं ख़रीद सकता या ऐसा शख्स उसको मेडिसिन लेकर दें। ऐसा मरीज़ जो मेडिसिन नहीं ख़रीद सकता उसे मेडिसिन लेके दें, चाहे वो इंग्लैंड में हो चाहे वो इंडिया में हो, कहीं ना कहीं यह काम ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात, जो कोई ऐसा शख्स जो तन्हाई का शिकार है उसके पास बैठकर बातें करें, उसको कंपनी दें। ये ऐसे शख्स आपको इंग्लैंड में मिल जाएंगे, उनके साथ बैठ के बातें करें, उनका दिलजोई करें। अब देखिए कि रब ताला आपको कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए आएंगे और आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके बाद जी आप वो आपके लिए फ़ायदेमंद। यानी दो बातें, किसी मरीज़ को मेडिसिन लेके दें, चाहे आप वहाँ पे कोई इंग्लैंड में मिल जाए या आपका आबाई वतन जहाँ कहीं है वहाँ कोई ज़रूरतमंद हो उसे मेडिसिन ले दें, और जहाँ आप रिहाइश पजीर हैं वहाँ कोई दाएँ बाएँ कोई तन्हाई में बैठा कोई शख्स हो उसके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, उसका दिल बहलाएँ। किसी का दिल खुश कर देना बहुत बड़ी बात है, इंशाल्लाह उसका इनाम आपको जरूर मिलेगा। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे रूहानी स्कॉलर से जरूर रब्ता कीजिएगा हमारे इदारे में, वो आपके मजहब से रिलेटेड आपकी रहनुमाई करेंगे। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं खालदा परवीन हूँ मेरा नाम, और मैं लंदन से बोल रही हूँ, और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद यूनुस अली है। मोहम्मद यूनुस अली। हमारा आपस में यानी कि बनती नहीं है हमारी आपस में। उम्र बताइए आप। उम्र बता दीजिए खालदा। मेरी उम्र 51 है। 51 है। और हस्बैंड का नाम बता दीजिए। उनका नाम है मोहम्मद यूनुस अली। क्या नाम है उनका? मोहम्मद यूनुस अली। मोहम्मद यूनुस अली। और उनके वालिद साहब का नाम? गुलाम रसूल। और उनकी एज क्या है? उनकी एज है 62। 62। और कहाँ से कॉल किया आपने हमें? मैं लंदन से बोल रही हूँ। लंदन से कॉल किया, ठीक हो गया। ठीक है जी। हस्बैंड के साथ बनती नहीं है, सिर्फ इतना यही पूछेंगी? जी यानी कि किसी भी बात में हमारा इत्तेफाक नहीं होता। चले डोंट वरी, कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती है। ओहो, चले डोंट वरी, अल्लाह ताला रहम करेगा। इस वक्त हमारे रूहानी स्कॉलर साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला। जी एक बात तो जी पूछना चाहती थी। जी पूछिए। कि मेरी बेटी का नाम है इकरा अली। इकरा अली, ठीक है जी। तो वो ना नमाज, अगर मैं कहती हूँ कि नमाज पढ़ो तो वो इन चीजों से दूर भागती है। इकरा की एज बता दीजिए। ठीक है, इकरा की एज बताएं कि वो यानी कि उसके ख्यालात नेक हों। इकरा की एज बता दीजिए काइंडली। इकरा की 18 उनकी एज है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। अल्लाह हाफिज। इन्होंने भी कॉल की, खालदा परवीन हमारे साथ थी, और काफ़ी 1+2-3 क्वेश्चन इनके जो हैं वो ऐड हो गए हैं। अच्छा खालदा मेरी बहन, जो सवाल आपने किया उसका जवाब तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर देता हूँ, लेकिन उससे ये भी बताऊँगा कि थोड़ा सारा जो आपको सर दर्द की शिकायत रहती है उसकी तरफ भी फौरी तौर पर तवज्जो दें। ये भी इंतहाई ज़रूरी है। किसी अच्छे फिजिशियन के साथ रब्ता कीजिए। बाकी रह गया आपका दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप एक तस्बीह किया करें, या रऊफ़ो या अल्लाह, या रऊफ़ो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करें। इंशाअल्लाह ताला ये इसमें अच्छे असरात आने शुरू हो जाएंगे। और यूनुस साहब से ये कहिएगा कि वो अपने स्टमक जो इशू है उसकी तरफ भी तवज्जो दें। ये हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती है, और प्रोड्यूसर साहब की भी मेहरबानी कि वो हमें टाइम दे रहे हैं बात करने के लिए। थोड़ा सारा हेल्थ इश्यूज़ भी दोनों के दरमियान चल रहा है, वो अच्छे फिजिशियन को भी चेकअप करवाएं, और या रऊफ़ो या अल्लाह की तस्बीह करें। बाकी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, बड़ा दिल खुश हुआ कि आप अपनी इकरा बेटी की नमाज और दीन से के मुतल्लिक़ परेशान हैं। तो बेहतर तो ये है कि इकरा बेटी वो ख़ुद ये तस्बीह कर लें। अगर वो नहीं करती तो आप कीजिए। वो तस्बीह है, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या ज़ुल जलाल वल इकराम। ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा करें। इंशाअल्लाह ताला वो दीन की तरफ आ जाएंगे, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप फ़ोन करके हमें ये बताएंगी कि वो दीन की तरफ राग़िब हो गई हैं। जी इंशाअल्लाह ताला। और ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि बहुत से हमारे व्यूअर्स कॉल करते हैं अपने घर के झगड़ों के बारे में और अपने मसले मसाइल की तरफ बात करते हैं। बहुत कम व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस्लाम की, जो हमारे दीन की राग़बत के लिए अपने बच्चों के लिए जो है वो थोड़े से टेंशन में होते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। माँ बाप अगर कोशिश करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी अपकमिंग जनरेशन जो है वो हमारे दीन से दूर नहीं होगी। उनकी नॉलेज उनको होगी, उसकी छाप जो है वो नजर आएगी बच्चों के तर्ज जिंदगी पर, है ना? बिल्कुल। अच्छा शाह जी, आप ये बताइए कि आजकल जो कॉल्स आई हैं उनमें ज्यादातर आजकल कोई एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा, कुछ अग्रेसिवपन बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ। इसके बारे में कुछ बताइए हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए कि क्या मसला है, क्यों इतना बढ़ रहा है? एक झगड़ा करे, थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाए, काउंट डाउन हो जाए। हाँ, उसके बाद जो एक बंदा खामोश हो जाए। यही अब दुनियादारी, अब जो डाइट जिस किस्म की हम लेते हैं, देसी खुराक अब हमें मुयसर नहीं है जो हमें काम डाउन करे। जिस किस्म की हम खुराक लेते हैं वो हमें यकदम हार्श कर देती है। एक होता है, दूसरा भी होता है। तो थोड़ा सा अपने विल को मजबूत करना होगा, अपनी अना को किल करना पड़ेगा। एक खामोश हो जाए, दूसरा कि अच्छा तुम अपनी भड़ास निकाल लो। थोड़ी देर के बाद प्यार से कहना भी तुमने ज्यादती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर साहब हमें कह रहे हैं प्रोग्राम वाइंड अप करना है। जी बिल्कुल। तो मैं तमाम एंड में चूँकि एक मैसेज देना होता है, तो मैं तमाम सुनने वालों से, तमाम व्यूअर से ये बात कहूँगा
کہ جو میں بات بتانے والا ہوں اس پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے بتائیں کہ سورہ رحمان جس کا میں نے خود ذاتی مشاہدات، تجربہ اور فائدے حاصل کیے ہیں، آپ لوگ جب بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوں، پریشان ہوں، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو تنہائی میں چلے جائیں اور سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو جی جناب سورہ رحمان کی تلاوت سنیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا جو ہے وہ اختتام ہوا جاتا ہے. اپنے ہمارے ایسے بھی جن کی کال نہیں لگی وہ پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے سے رابطے میں رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. خدمت میں حاضر ہیں اور یہاں پر ہمارے روحانی اسکالر صوفی برکت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہمارے تمام روحانی مسائل کا حل ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فراہم کر رہے ہیں. جناب ہمارے پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے. اس میں آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی شہر، کسی بھی ملک سے یا کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کال کر سکتے ہیں، استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے میں آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ تمام روحانی اسکالر موجود ہیں جو بھرپور آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ہے وہ مدد کی جائے. اور ہمارے پروگرام میں اگر آپ کال کرتے ہیں تو آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہی آنسر کیا جائے گا. ہمارے ایسے ویئرز جو بیمار ہیں اور بیماری ان کی جو ہے وہ طول پکڑ گئی ہے، یا پھر اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا پھر امیگریشن کا مسئلہ ہے، اسپیشلی ایسے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں. آپ اپنے ڈاکٹر سے، سولسٹر سے بھی رابطہ رکھیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ایک لائیو کالر یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی کال لگ چکی ہے اور پلیز ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محترمہ منیر احمد میرا نام ہے. میں فرانس سے بات کر رہا ہوں. کہاں سے بات کر رہے ہیں منیر احمد؟ فرانس سے بات کر رہے ہیں. منیر احمد ہمارے ساتھ ہیں. جی منیر احمد اپنی والدہ کا نام بتائیے کائنڈلی. محترمہ میری والدہ کا نام عاطیہ بی بی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 12/6/1976 کی میری پیدائش ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. جی منیر صاحب کیا پوچھیں گے؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں فرانس میں. میں لیگل اور پینٹر ہوا تھا. ابھی تک یہاں کوئی کام کا سلسلہ بھی نہیں ہوا اور کاغذ کا بھی نہیں ہوا. تو اب میں کینیڈا کے لیے جانا چاہتا ہوں. میں صاحب یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہاں اتنا بیسٹ ہے یا کہ میں کینیڈا کے لیے ٹرائی لگاؤں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا پروگرام ہے اگلے مہینے کو کینیڈا جانے کا. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اس سلسلے میں میں اکیلا والدین کا بیٹا ہوں اور بہت زیادہ پریشان ہوں. چلیں ڈونٹ یو وری جناب، اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. آپ ڈونٹ یو وری. صوفی برکت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی بالکل. جی جناب اس وقت منیر ہمارے ساتھ تھے اور فرانس سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے اور تھوڑا ان کا کینیڈا جانا چاہتے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بھی بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ کینیڈا جانا بیٹر رہے گا یا یہیں پر لانگ ٹائم تھوڑا سٹے کرنا بیٹر رہے گا. ہاں جی شکریہ بیٹا کال کرنے کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے. آپ پریشان نہ ہوں. سفر بھی ایک وسیلہ ظفر ہوتا ہے. آپ اگر ہجرت کرنا چاہیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ، لیکن اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر آپ کاروبار کو جدت دینا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کائنڈلی آپ کو ہمیں تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا. اس میں ہم آپ کے لیے استخارہ کر لیں گے. اگر آپ اس کا طریقہ کار آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو لائیو کال کے نیچے نمبر دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں اور ہمارے ادارے میں ابھی بھی آپ کال کر کے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل جان سکتے ہیں. آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا. جو نہیں ہے کینیڈا جانے کے لیے انشاءاللہ بہتر ہوگا میرے خیال میں تو آپ کے لیے، کیونکہ ایک جگہ سے جب انسان اچھے طریقے سے کچھ رسپانس نہ ملے تو وہاں سے انسان کو ہجرت کر دینی چاہیے. اور اس میں آگے چل کے اگر اس کے لیے آپ ایک اچھے طریقے سے پرپوزل کریں، یہ نہیں کہ آپ بے مقصدی سا چل جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے کون سا کام بہتر رہے گا اور کس طرح بہترین رہے گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور آپ کا. یا مغنیوں یا رضا کو، یا مغنیوں یا رضا کو آپ کثرت سے پڑھیے. 7 دن تک پڑھیے گا 313 مرتبہ روزانہ بعد نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد، اور قرآن مجید تلاوت کیجیے گا اور رابطہ لازمی کیجیے گا بھائی. انشاءاللہ آپ کے لیے جو بہتر ہے انشاءاللہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اسلامی روایت کے مطابق درود شریف کے ساتھ اور اس کی مزید افادیت کرے گا. آپ نے کون سا کاروبار کس طرح کریں گے، کس وقت کریں، انشاءاللہ وہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے. جی جناب آپ کو بتایا جائے گا. اور ساتھ مسز بٹ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ. میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی ضرور پوچھیے. بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام یاسر بٹ ہے.
यासिर भट्ट है और आपका अपना नाम भी चाहिए होगा। मेरा नाम अदीबा भट्ट। अदीबा भट्ट। और डेट ऑफ बर्थ क्या है यासिर की? उसकी है 7/3 यानी कि 3 जुलाई 1982। 1982। जी क्या पूछेंगी यासिर के बारे में मिसेस भट्ट? मैंने पूछना उसका फ्यूचर क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो बच्चे का दिल घर में लगता है नहीं लगता, बाहर जाने की सोचता है। अच्छा, कहाँ से कॉल किया है आपने हमें? कहाँ से? क्या चाहता है? ठीक है, कहाँ से कॉल की इस वक्त आपने हमें? मिल्टन झील से। अच्छा ठीक है जी। चले जनाब, आप टीवी के सामने बैठिए। इस वक्त सूफी बरकत अली शाह हमारे साथ मौजूद है, आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेना आप कॉल करने का। आपके बेटे को अल्लाह तबारक ताला इंशाल्लाह हमारी दुआ होगी, हम दुआ भी करेंगे और इसके लिए जो विरद वज़ाइफ है इंशाल्लाह उसका भी अहतमाम करके ज़रूर आपको बताएंगे। या अल्लाह हो या शकूर, या अल्लाह हो या शकूर, आप कसरत से पढ़ के उसे पानी पे दम करके पिलाइएगा। और आप माँ हैं, उसके लिए खुदा का दूसरा रूप है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी इंशाल्लाह उसके लिए दुआ करूँगा। या अल्लाह हो या शकूर, आप उनके लिए कसरत से पढ़िए, 7 दिन तक पढ़िए। और इसके लिए हम आपके बेटे के लिए जिस तरह कहने कि उसके बारे में फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में अल्लाह तबारक ताला की ज़ात जानती है। लेकिन जो अल्लाह तबारक ताला ने हमें इल्म दिया है आफ्टर कैलकुलेशन, उसके माजी हाल मुस्तकबिल के बारे में जो कुरान और हदीस की रोशनी में है, वो बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर इसमें रब्ता कीजिएगा जनाब। शुक्रिया जी जनाब, एक लाइव कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं लंदन से बात है। मैं ये कही थी मेरे बच्चे को ना वो आपने वजीफा कुछ बताया था, वो मैंने पढ़ा। उम्मीद करती। मोहतरमा पहले अपना नाम बताइए। मोहतरमा पहले अपना नाम बताइए। मैं एयर पे नहीं आना चाहती जी, मैं एयर पे बात नहीं करना चाहती। तो जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। बेटे का नाम बता दीजिए जिसके बारे में आपने पूछा था। मगर एयर पे हमें नहीं अलाउंस करना है। जी हेलो हेलो जी, टीवी की वॉल्यूम जो है वो आप लोग ऊंचा रखते हैं। काइंडली मैं मुतअद्दिद बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बड़ी हार्मफुल रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट कर रही होती हूँ कि काइंडली जब आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, ताकि आपकी प्रॉपर आवाज़ जो है वो हमें आ सके, हम लोग सुन सकें आपकी कॉल को, आपकी बात को। बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है, 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें आपकी लाइव कॉल हम लोग लेते हैं, बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है। बहुत सी कॉल जो होती है लाइनअप होती हैं और फिर कॉल लग के हमें ड्रॉप करनी पड़ती है, सिर्फ इस वजह से कि आपके टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद नहीं होता। और जब आपको इस्तिखारा आपका कर दिया गया है या आपको वज़ाइफ बता दिए जाते हैं तो आप उन वज़ाइफ को पढ़ा कीजिए। देखिए, हमारे रूहानी स्कॉलर्स के पास डेली रूटीन्स में बहुत ज़्यादा काउंटलेस कॉल होती हैं, तो मुश्किल होता है। अगर आप अपना नाम भी नहीं बताएंगी, बेटे का नाम भी नहीं बताएंगी, तो आप हमें बताइए कि हम कैसे आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये वजीफा पढ़ें। अब आई डोंट नो किस प्रोग्राम में आपने कॉल किया। हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं, आपने हमारे रूहानी आलम ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर में किया है या इस्तिखारा मरकज में किया। आई डोंट नो किस प्रोग्राम में आपने कॉल किया और किस मकसद के लिए कॉल किया था। इतना जो है वो हर वक्त हमारे पास मौजूद नहीं होता डाटा। अगर आपको तफसील से जानना होता है अपने बारे में तो काइंडली आप हमारे इदारे से राब्ता कर लिया करें। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हमारे रूहानी स्कॉलर जो इस वक्त प्रोग्राम में ऑन एयर हमारे साथ हैं, अगर आप इंडिविजुअली अपने बारे में जानना चाहती हैं तो काइंडली आप कॉल कीजिए। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहती हैं तो फिर इनके नंबर जो होते हैं वो टेलीविजन पर डिस्प्ले होते हैं, आप देखिए, अभी नोट कीजिए। टीवी स्क्रीन पर जो हैं दोनों मोबाइल नंबर मौजूद हैं, काइंडली आप नोट कर लीजिए, हमारे इदारे से राब्ता कीजिए और उनसे रहनुमाई हासिल कीजिए। अपने अपने बेटे के बारे में क्या पूछा था, क्या नहीं पूछा था, कब आपने कॉल की, और आज जो है वो उसी लिहाज से आपको रेमेडी देना, वज़ाइफ देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो काइंडली आप थोड़ा सा इस बात को समझा करें। आप नाम भी नहीं बताएंगी, बच्चे का नाम भी नहीं बताएंगे तो हो पॉसिबल कि हम आपको रिप्लाई कर पाएंगे। जी थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। और जनाब, हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनका बच्चों का मसला है या जो लोग इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, जिनका इमिग्रेशन का मसला है, ये तमाम मसाइल का हल हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में फराहम करते हैं। लेकिन ये प्रोग्राम तमाम लोगों के लिए है, तमाम हमारे दोस्तों के लिए है, हमारे दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले व्यूअर्स का भी ये प्रोग्राम है, उनका भी इस पर पूरा पूरा हक है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में आपको आंसर किया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे लोग हमारे इदारे से राब्ता कीजिए, हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ पर मौजूद होते हैं जो आपके मजहब और आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको आपकी रहनुमाई करते हैं। जी बिल्कुल, तमाम की तमाम रहनुमाई हर वक्त
24 घंटे हमारे इदारे में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, वो इंतज़ार में हैं। किसी किस्म का भी कोई आप मसलन आसफ क्वेश्चन करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, उसका जवाब फौरी इंशाल्लाह उसी वक्त आपको दिया जाता है। उसमें जो भी सदकात हैं, जो खैरात हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह आप कर सकते हैं, कौन सा वक्त आपके लिए बेस्ट है, आप किस वक्त इनको अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि सदका जी जनाब कॉल मेरा ख्याल है लग चुकी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम समीना है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी समीना, क्या पूछेंगी? मैं अपने और अपने बेटे के बारे में सवाल करना चाहती हूँ कि ये साल हमारे लिए कैसा रहेगा। ठीक है। मेरे मसले भी काफ़ी हैं, कभी एक महीना सुकून से गुजरता है, फिर कोई ना कोई मसला उठ जाता है। अच्छा ठीक है समीना, अपनी वालदा का नाम बताइए। ज़ेबुन्निसा। और आपकी एज क्या है? होगी 45 46 होगी। ओके, बेटी का नाम भी बता दीजिए। बेटी नहीं, बेटा है। अच्छा बेटे का नाम बताइए। सॉरी, सफवान। और आपका नाम समीना है। बेटे की एज भी बता दीजिए। बेटी की एज है 11वें साल में, जैसे 10 साल का है, 11 पूरा। अच्छा ठीक है जी। अच्छा बेटे के बारे में क्या जानेंगी? ये बेटे यानी पढ़ाई में कैसा होगा? ठीक है जी बिल्कुल। और मेरा फर्मा बरतार रहेगा, अल्लाह करे जी इंशाल्लाह। जनरल कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है जी। जी जी प्लीज। चले बहुत शुक्रिया, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब। समीना हमारे साथ थी और एक तो वो पूछना चाहती हैं कि थोड़े से मसाइल हैं, अप्स एंड डाउन्स तो ऑब्वियसली घरों में आते हैं, और अब आपको हम वज़ाइफ भी बताएंगे, और बेटे का जो है वो ये साल कैसा गुजरेगा इस हवाले से बता दीजिए। देखिए जी, इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए, प्लानिंग मनसूबा करना चाहिए। क्यों अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा, अक्ल सलीम अता की है, जिसकी बिना पे इंसान एक अच्छे तरीके से अपना आप मुस्तकबिल बारे में, हर चीज़ के बारे में जान, कुरान और हदीस की रोशनी में जाने के लिए इंशाल्लाह इसके लिए हम ज़रूर मेहनत करते हैं। आपको वो चीज़ें जो आपके मुताबिक होती हैं वो ज़रूर भेजें। या रहमानो या रहीम, या रहमानो या रहीम आप कसरत से पढ़िएगा और 7 दिन तक पढ़िए, खुला पढ़िएगा। आपके बेटे के लिए मैं इंशाल्लाह 2014 के बारे में जो आप कह रही हैं अपने तुम्हारे, ये आपके लिए मिले जुले रुझानात के साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा कि आपने कुछ कहते कहते रुक भी रही हैं, बड़े हालात कभी इस तरह हो जाते, कोई इसके लिए तफसीली जो ज़ैचा होता है उसमें थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। मैं लाजमी समीना बेटा आपके लिए वो ज़ैचा और इस्तिखारे के मुताबिक आपका इस्तिखारा करूँगा, और कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी आपके लिए रहनुमाई होगी, विद वजीफ़ा होगा, आयात कुरानी होगी, सदकात होंगे, खैरात होंगे, वो आपको इसका तरीक़ा कर अच्छे तरीके तो सदका खैरात रद्दुल बला में शामिल हो जाता है। इस इंसान की 100 अलाएँ बलाएँ मुसीबतें टल जाएंगी। और आपके बेटे के लिए इंशाल्लाह मैं यहाँ भी दुआ करूँगा, और इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे, और इन ऐसा वसी बताऊँगा वो आपका फरमा बरदार रहे, आपके लिए नेक और सारे औलाद के ज़िम्मे में आए, आपका सदका जारिया बनेगा वो इंशाल्लाह। जी जनाब, हमारे प्रोग्राम रूहानी आलम ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर में हम लिमिटेड कैलकुलेशन करते हैं, और आपके मसाइल जो हैं उसके लिए वजीफ़ा आपको रेकमेंड करते हैं। लेकिन हमारे रूहानी स्कॉलर जो हैं वो जब स्ट्रांगली थोड़ा सा रेकमेंड करते हैं आफ्टर प्रोग्राम कॉल करने के लिए, तो डेफिनेटली इसके बिहाइंड कोई रीज़न होती है जो हम ऑन एयर आपके साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे होते, ऑन एयर कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है कि आप लोग डर जाएं और खुदा न खास्ता को मसला है। बात यह है कि मसले का होना जो है वो इतना अहमियत नहीं रखता। अहमियत इस बात की है कि इसको ख़त्म किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जो डिटेल में कुछ जानना चाहते होते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस्तिखारे के लिए हमें कुछ टाइम टेकिंग होता है, कुछ ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार होता है, और प्रोग्राम का दौरानिया 2 घंटे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा होती है, अपने टॉपिक को भी कवर अप करना होता है, तो लिमिटेड हम आपको जो है वो आंसर कर सकते हैं। डिटेल में जब जाना होता है, या फिर जिनको कहा जाता है कि हम आपके लिए इस्तिखारा करेंगे, ऐसे लोग बिल्कुल पीछे ना हटा करें, बल्कि वो अपने इस्तिखारे के नताइज जानने के लिए प्रोग्राम के बहुत ज़रूर कॉल किया करें। क्योंकि इस वक्त हमारे इदारे में जो हमारे दूसरे रूहानी स्कॉलर है इस वक्त टीवी देख रहे होते हैं, और साथ साथ आपका डाटा जो है वो भी कॉपी कर रहे होते हैं, और साथ साथ आपका जो है आपके लिए इस्तिखारा जो है वो जारी हो चुका होता है। तो प्रोग्राम के बाद कॉल करके इसके नताइज हासिल कर लिया करें। और एक लाइव कॉलर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है।
जी मेरा ख्याल है कॉल हमारी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। नहीं, डोंट वरी, कॉल दोबारा मिलाइए और इस्तिफादा हासिल कीजिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे, इस 2 घंटे में हम आपकी लाइव कॉल लेते हैं और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको फ्राहम करते हैं। और हमारे ऐसे व्यूअर जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, ये प्रोग्राम उनकी खिदमत में भी पेश किया जा रहा है। हमारे इदारे से रब्ता कर सकते हैं और अपने तमाम मसाइल का हल पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे रूहानी स्कॉलर अकॉर्डिंग योर रिलीजन और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जी जनाब। हाँ जी बिल्कुल, जो रहनुमाई जिस तरीके से आप इंशाल्लाह हमसे पूछना चाहेंगे उसकी रेफर बिल्कुल फर्दन इनफरादी तौर पर अगर आपके पास जितना भी टाइम होगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके किताब व सुन्नत के मुताबिक, आपकी बुक्स के मुताबिक, हर तरह का जो भी आप सलूशन चाहते हैं इंशाल्लाह वो कब ज़रूर मिलेगा और उसका हल भी होगा, उसका तरीक़ेकार भी बताया जाएगा कि आप किस तरह इस चीज़ से, किसी दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से किस तरह आप इससे मुबर्रा हो सकते हैं, इससे कैसे अल्लाह तबारक ताला, क्योंकि जो भी बनी इंसान अल्लाह तबारक ताला की ही मखलूक है, अल्लाह ताला की खालिक करदा कायनात है और एक आदम की हम औलाद हैं जिसकी वजह से आगे से डिवाइड नेशन है, कोई किस तरह है, किस तरह ये अल्लाह तबारक ताला ही बेहतर जानते हैं उसने क्या क्या तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खेड़ें बनाई हैं, ये कायनात मार्ज वजूद में और चल रही है और हम भाग रहे हैं तरक्की की तरफ दिन ब दिन। गॉड एक्चुअली बहुत बड़ा। हाँ जी जी जनाब, ऐसा है कि हम ब्रेक से तो वापस आए हैं, टॉपिक को भी कवर अप कर रहे हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम आ रहा है सूफ़ी साहब की तरफ जाने का, क्योंकि सूफ़ी साहब हर ब्रेक में हमें जो है नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं, लेकिन हमें कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही हैं हमारे कंट्रोल रूम से। और जनाब मैं अपने व्यूअर्स को ये बताती चलूँ, बड़ी खुशखबरी भी है कि यहाँ पर चूँकि हमारे प्रोग्राम का दुरानिया 2 घंटे था, लेकिन हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें साद अख्तर साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे रूहानी स्कॉलर हैं जिनका प्रोग्राम जो है वो हम लोग रात को ऑन एयर करते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और जनाब ऐसा करते हैं कि नात सर ज़रूर सुन लेते हैं, क्योंकि नात बहुत ज़रूरी है सुनना, नात के बगैर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी जानना चाहेंगे कि नात ज़रूर सुनाइए आप हमें काइंडली। जी बिल्कुल, छोटी सी नात है इंशाल्लाह शायर सुना देते हैं जनाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला को। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, जो सरवरे आलम का मिलाद मनाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को। जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को। अल्लाह के खजीनों के मालिक नबी सरवर हैं, अल्लाह के खजीनों के
मालिक नबी सरवर हैं, ये सच है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं, माशाल्लाह, सुभान ये अल्लाह, सच सुभान अल्लाह। है नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। महबूब की महफिल को। जी जनाब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत नात, मुझे मतलब सारी नातें बहुत अच्छी हैं, सब रहमत है, हर नात में रहमत है। जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहते हैं तो आंख भी आबदीदा हो जाती है और बड़ा एक सुकून भी मिलता है। तमाम तारीफ़ें बेशक उन्हीं के लिए हैं, लेकिन कुछ नातें ऐसी होती हैं जो दिल को जैसे छू लेती हैं। बेशक ऐसा ही है कि जिनको तौफीक मिलती है वही लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं, जिनको तौफीक मिलती है वही लोग अच्छा काम कर पाते हैं। बस दुआ हमारी ये होनी चाहिए कि अल्लाह बारी ताला हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि जो राह हक पर चल सके, उस काबिल कर दे, उस नज़र के काबिल कर दे कि हमें भी वहाँ पर बुलाया जाए और हम भी उनकी महफिल जो है वो यूं ही सजाते रहें, यूं ही सजाते रहें। और जनाब ये खूबसूरत सी महफिल जो है रूहानी आलम ऑनलाइन इस्तिखारा सेंटर जो है वो आप ही के लिए है और आप ही के लिए सजाई जाती है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। और जनाब हमारे प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एहतमाम की जानिब बढ़ रहा है, तो हम लोग मेरा ख्याल है दुआ की जानिब बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। को कबूल फरमाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदियतन तोहफतन पेश आमीन सुम्मा आमीन। कुल शिमत को पेश कर चाहिए मैंने मालिक इसके सफर से जो बेरोजगार हैं, किसी किस्म की अल्लाह तबारक व बेरोजगारी कर सके, कोई अलग बीमार है, आमीन सुम्मा आमीन। या मेरे मालिक जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, खासो खास जिन आदमी नहीं उसका उनकी या मेरे मालिक दुआओं को कबूल फरमा, उनके बच्चों को शक्कर फरमा, रहमत फरमा। और या मेरे मालिक आखिरत में हमारे साथ इंसाफ और दोज़ख से बचा, क़यामत में हमारा पलड़ा भारी हो। तो हम ज़ुबान पे ही है कि मरने से पहले ही कलमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी जनाब, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। हमारे प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल ली गई है और आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हवसों की बरकत अली शाह ने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको फ्राहम किया है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे रूहानी स्कॉलर साहब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।